بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی دور دراز کے شہر میں ایک دولت مند تاجر رہتا تھا۔ اس کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ اس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئی تھی، اس لیے تاجر نے دوسری شادی کر لی۔ تاجر کی دوسری بیوی بڑی سنگ دل اور مکار عورت تھی۔ چونکہ اس کی بڑی بیٹی ماہنور سے تاجر کو بڑی محبت تھی، اس لیے وہ ماہنور کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن جو چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام ایمان تھا، اسے سارا دن گھر کے کاموں پر لگائے رکھتی تھی۔ تاجر کو بھی اپنی چھوٹی بیٹی سے کچھ زیادہ لگاؤ تو نہیں تھا، کیونکہ وہ ماہنور کے مقابلے معمولی شکل و صورت کی مالک تھی۔ جب دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں تو تاجر کو خیال آیا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دینی چاہیے، مگر سچ پوچھو تو یہ بڑی بیٹی ماہنور کی شادی کا خیال تھا اور وہ چھوٹی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ اس نے چھوٹی بیٹی ایمان کا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی، جبکہ بڑی بیٹی ماہنور کی شادی اس نے خوبصورت نوجوان سے کرا دی۔ اس کو جہیز میں سونے کی اشرفیاں، ہیرے جواہرات اور چاندی کے برتن دیے گئے۔ تاجر نے اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ اس علاقے کے لوگ بڑے دنوں تک اس شادی کے بارے میں ذکر کرتے رہے کہ اس طرح کی شادی ہمارے علاقے میں کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ ماہنور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تو اس کی سوتیلی ماں نے چھوٹی بیٹی ایمان پر اور ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ ایمان بڑی سیدھی سادی اور فرما بردار لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سلوک پر کبھی بھی ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالتی تھی اور نہ ہی اپنے باپ سے کوئی شکایت کرتی تھی۔ ویسے بھی تاجر کو اپنی چھوٹی بیٹی سے محبت تو تھی نہیں، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ سوتیلی ماں اس کی بیٹی پر کیا ظلم توڑ رہی ہے۔ دن بھر کام کر کے تھکی ہاری بیچاری جب ایمان اپنے بستر پر لیٹتی تو چپکے چپکے آنسو بہاتی اور اچھے دنوں کو یاد کرتی جب اس کی پیاری ماں زندہ تھی۔ ایک رات وہ اتنا روئی کہ نڈھال ہو گئی۔ رات بھی کافی گزر چکی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ اپنے بستر پر سے اٹھی اور اپنے مکان کے پیچھے والے حصے میں چلی گئی۔ اس کی پیاری ماں بھی کبھی کبھار وہاں بیٹھا کرتی تھی۔ گلاب کے پودے کے سائے میں ایمان اکثر کھیلا کرتی تھی۔ اس رات بھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ گلاب کے پھول کو دیکھ دیکھ کر روتی رہی۔ اسے اپنے بچپن کے سہانے دن یاد آ رہے تھے۔ کاش ایک بار پھر سے میں چھوٹی بچی بن جاؤں اور گلاب کے پھولوں کے ساتھ کھیلا کروں، مگر اب میرے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان، پریشان مت ہو، رویا نہ کرو، زندگی جیسی نعمت رونے کے لیے نہیں ہے۔ اچانک گلاب کی جھاڑی سے آواز آئی۔ ایمان نے حیرت سے گلاب کے پھولوں کی طرف دیکھا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ جھاڑی اس کی بات سن رہی تھی اور اس کا جواب بھی دے رہی تھی۔ لیکن میں رونے کے سوا کر بھی کیا سکتی ہوں؟ ایمان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کی نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں۔ کوئی نوجوان مجھ جیسی بدصورت لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی میرے بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے سب معلوم ہے۔ ایمان، اب خاموش ہو جاؤ، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ اب ایسے کرو کہ گلاب کی ایک کلی توڑو۔ اس کلی کے اندر تمہارے لیے ایک چیز رکھی ہے، تم اسے لے لو تو تمہارے بڑے کام آئے گی۔ ایمان نے گلاب کی جھاڑی کو غور سے دیکھا تو اس میں چھوٹی بڑی بے شمار کلیاں لگی ہوئی تھی۔ ایمان نے ایک کلی توڑ لی جو سب سے بڑی نظر آ رہی تھی۔ بڑے تعجب سے جب اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی اور اوپر طرح طرح کے نقش و نگار اور حروف لکھے ہوئے تھے۔ ایمان خوش ہو کر یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لیتی ہے۔ پھر اس نے گلاب کی جھاڑیوں کا شکریہ ادا کیا اور پوچھنے لگی،
इस बंद कली में ये अंगूठी कहाँ से आ गई? तो झाड़ी में से आवाज आई, प्यारी लड़की, ये एक मुकद्दस अंगूठी है और ये एक अल्लाह के वली अपनी उंगलियों में पहना करते थे। इन अल्लाह के वली की हुकूमत इंसानों, जिनों, चरिंद परिंद और सब चीजों पर थी। अब तुम इस अंगूठी के जरिए अपनी हर ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हो। जो भी तुम उसे काम लेना चाहती हो तो उसे कहना, ए पाक अंगूठी, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। इतना कहते ही फौरन से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाया करेगी। ईमान खुश होकर बोली, बहुत अच्छा, अब तो बड़ा मजा आएगा। ईमान खुशी से उछलने लगी। उसने अंगूठी की तरफ देखकर कहा, ऐ पाक अंगूठी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि एक खूबसूरत छोटा सा मकान मुझे बना दिया जाए, जिसमें काम काज करने के लिए एक नौकरानी भी हो। जैसे ही ये अल्फाज ईमान के मुंह से निकले, हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और देखते ही देखते उसको जमीन से उठाकर हवा के कंधों पर सवार कर दिया। ईमान ने महसूस किया कि वो फिजाओं में उड़ रही है और अंधेरी रात में आसमान पर चमकते दमकते सितारे बड़े रोशन थे। उसने नीचे देखा, उसका शहर बड़ा छोटा मालूम हो रहा था। बड़े बड़े मकान बच्चों के नन्हे मुन्ने घर की मानिंद नजर आ रहे थे। ईमान ने खौफ से आंखें बंद कर ली और इसने अपनी सांसें रोक ली। थोड़ी देर के बाद उसके पांव जमीन पर लगे तो इसने आंखें खोली। वहां पर एक सजा सजाया कमरा मौजूद था। चारों तरफ लंबी लंबी रोशनियां जल रही थी। कमरे में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ बैठने के लिए खूबसूरत कुर्सियां भी पड़ी थी। अलमारियां सोने चांदी के बुतों से भरी हुई थी। वो इस कमरे से निकलकर मकान के दूसरे कमरे में आ गई। हर कमरा एक से बढ़कर एक सजा हुआ था। इतनी उम्दा चीजें देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसका ख्याल था वो कोई सुनहरा ख्वाब देख रही है। इतने में एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई। इसने झुककर ईमान को सलाम किया और कहने लगी, मालकिन, मेरा सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है कि आपके मिजाज अच्छे होंगे। आइए, खाना तैयार है, नोश फरमा लीजिए। वो ईमान को लेकर एक छोटे से कमरे में चली गई। वहां पर बहुत खूबसूरत फानूस और शमा लगी हुई थी। दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे। एक मेज पर सोने चांदी के बर्तनों में लजीज खाने पड़े थे। ईमान ने ऐसे जायकेदार खाना ना तो कभी देखा था और ना ही कभी खाया था। खादमा इसके सामने सर झुकाए खड़ी रही। ऐसा खूबसूरत मकान और इतनी कीमती चीजें तो बादशाहों के महलों में भी नहीं होती। ईमान ने अपने आप से पूछा। इतने में खादमा एक बड़े से प्याले में गरम गरम पानी ले आई। ईमान ने इस पानी से हाथ धोए तो खादमा ने फौरन तौलिया पेश किया। इसके बाद उसे शानदार ख्वाबगाह में ले गई। वहां बहुत से कीमती कपड़े रखे हुए थे। ऐसे कपड़े जो शहजादियां महलों में पहना करती थी। वो एक एक सूट को देखती रही और हैरत से अपने दांतों में उंगलियां दबाती रही। इस रात ईमान बड़ी बेफिक्री से गहरी नींद सो गई। हसीन हसीन ख्वाब देखने लगी। सुबह उठते ही इसने अंगूठी की तरफ देखा और इसने अपनी दूसरी ख्वाहिश यूं बयान की, ऐ प्यारी अंगूठी, मुझे सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थाली चाहिए ताकि मैं दूसरी औरतों की तरह बाजार जाऊं और अपनी पसंद की चीजें खरीद पाऊं। ये अल्फाज अदा करते ही अचानक से सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थाली ईमान के हाथ में आ गई। ईमान इसी वक्त अपने मैले पुराने कपड़े पहने हुए थी जो इसके बाप ने उसे लेकर दिए थे। जब उसने ये कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने और कीमती जेवर पहना और खादिमा को लेकर बाजार की तरफ चली गई। इसने अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था ताकि उसे कोई पहचान न सके।
इसने अपनी सौतेली माँ को बाजार में देखा, जो फल फरोश की दुकान पर खड़ी फल खरीद रही थी। ईमान के बिल्कुल करीब से गुजर गई, लेकिन इसने उसे नहीं पहचाना। जबकि दूसरी तरफ ईमान के यूं घर से गायब हो जाने का किसी को भी अफसोस तक नहीं हुआ, बल्कि इसकी सौतेली माँ तो कहने लगी, शुक्र है मेरी इस मुसीबत से जान छूटी। यही हाल ईमान के बाप का भी था। वो सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ वो खुद ही घर से चली गई, वरना मुझे इसकी शादी करनी पड़ती और मुझे उसे जहेज भी देना पड़ता। चलो ये मेरा खर्चा भी बच गया। इधर अपने खूबसूरत मकान में वफादार खादमा के साथ ईमान बड़े आराम से रह रही थी। दुनिया की तमाम नेमतें और हर किस्म की खुशियां उसे मैसर थी। हर रोज वो नए कपड़े पहनती, लजीज खाने खाती और बादशाहों की तरह रहती थी। उसे ना तो सौतेली माँ का डर था और ना ही अपने बाप की झिड़कियों का डर था। इसका जिस वक्त जो जी चाहता था वो करती थी और जिस वक्त दिल चाहता था वो सो जाती। जहाँ जाना होता बेरोक टोक चली जाती। एक दिन ईमान ने अपनी खादमा को किसी काम से बाजार भेजा और वो बड़े आराम से बिस्तर पर लेटी थी। अचानक मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने उठकर खिड़की से बाहर झांका। दरवाजे पर एक नौजवान मुसाफिर खड़ा था। ईमान ने पूछा, कौन है? मुसाफिर ने ईमान को नौकरानी समझकर जवाब दिया, एक हादसे में मेरा हाथ जख्मी हो गया है, क्या तुम बता सकते हो यहाँ करीब ही किसी तबीब का मकान है क्या? तो ईमान कहने लगी, जी हाँ, तबीब का मकान बिल्कुल पास ही है, लेकिन इस वक्त वो तबीब आपको मकान पर नहीं मिलेंगे। आप अंदर तशरीफ लाइए, मैं आपके जख्म पर मरहम पट्टी कर देती हूँ। ईमान ने जल्दी से चेहरे पर नकाब डाला और नौजवान को लाकर कमरे में बिठा दिया। फिर पानी गर्म करके उसके हाथ का जख्म धो दिया और मरहम पट्टी लगाकर उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नौजवान आगे से बोला। तुमने मुझ मुसाफिर के साथ जो सलूक किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। जब कभी दोबारा तुम्हारे शहर में आऊंगा तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा जरूर लाऊंगा। जनाब, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे उम्मीद है आपका जख्म चंद रोज में सही हो जाएगा और आपकी सारी तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। अभी ये बातें चल रही थी कि ईमान की नौकरानी वापस आ गई। ईमान ने उसे हुक्म दिया कि मुसाफिर के लिए खाना तैयार करो और वो ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई। खादिमा ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और चांदी के प्यालों में लेकर मेहमान के सामने पेश कर दिया। चंद लम्हों के बाद ईमान भी आ गई। उसने अभी तक नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ रखा था। खाना खाने के बाद नौजवान उठ खड़ा हुआ। ईमान उसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आई। नौजवान ने एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगी, जनाब, आप अगर दोबारा आए तो हमारे गरीब खाने पर जरूर आइएगा। इस मकान में मैं अपनी खादिमा के साथ रहती हूँ, बहुत बेहतर है। मैं वादा करता हूँ मैं जब भी कभी आपके शहर में आया तो आपके मकान पर जरूर आऊँगा, लेकिन मेरा तोहफा आपको कबूल करना पड़ेगा। ये कहकर मुसाफिर ने सलाम किया और वहाँ से चला गया। मालकिन, ये नौजवान इतना खुश अखलाक था, किसी अच्छे घराने का मालूम होता है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, ईमान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और थोड़ी देर तक इस मुसाफिर के बारे में सोचती रही। अगले रोज वो बाजार गई। एक मक्कार औरत ने इसकी उंगली में सोने की अंगूठी देख ली। इसने सोचा, इस लड़की की अंगूठी छीन लेनी चाहिए। वो ईमान के पीछे लग गई कि जहां भी इससे मौका मिले वो अंगूठी इसकी उंगली से निकाल कर छीन लेगी। इस रोज दुकान में तांबे और लोहे के नए नए बर्तन आए हुए थे। वहां पर बहुत सी औरतें खड़ी इन बर्तनों को देख रही थी। ईमान भी इनके पास जाकर खड़ी हो गई और बर्तन देखने लगी। हालांकि इसके घर में सोने चांदी के बर्तनों की अलमारियां भरी पड़ी थी। चंद लम्हे के बाद इसने वहां से जाना चाहा और वो वहां से निकलने लगी। जब वो औरतों के पास से गुजरी किसी ने पलक झपकते ही इसका हाथ पकड़ा
और फिर फौरन उसे छोड़ दिया। ईमान इस बात पर कोई ध्यान नहीं दी। अब वो वापस अपने घर आ गई। दोपहर को खाना खाने से पहले जब वो अपने हाथ धोने लगी, उसने देखा कि इसकी अंगूठी तो गायब है। फौरन खाना छोड़कर वो मकान से बाहर निकली और बाजार की तरफ भागी। ईमान को इस औरत का चेहरा कुछ कुछ याद था, जिसने बर्तनों वाली दुकान पर इसका हाथ पकड़ा था। लेकिन अब इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इसने शहर का कोना कोना छान मारा, मगर उसे वो औरत कहीं नहीं मिली। आखिर थक हार कर ईमान घर आ गई। खादमा ने अपनी मालकिन को यूं आंसू बहाते देखा तो पूछने लगी, मालकिन क्या हुआ है? तब ईमान ने उसे अंगूठी चुराए जाने का सारा वाकया बता डाला। ईमान की खादमा असल में एक परी थी। इसने अपनी मालकिन को तसल्ली दी, घबराओ नहीं मालकिन, मैं इस चोर को जरूर ढूंढ लूंगी जिसने आपकी अंगूठी चुराई है। मैं अभी इसकी तलाश में जाती हूँ और अंगूठी लेकर वापस आती हूँ। ये कहकर खादमा घर से चली गई। ईमान खिड़की के पास बाहर जाकर देखने लगी। जब इसने देखा, खादमा मकान से बाहर निकलते ही एक खूबसूरत परी बनकर आसमान की तरफ उड़ गई। जब वो परी बाजार में पहुंची तो वो दोबारा नौकरानी बन गई थी। इसने थोड़ी ही देर में चोर औरत को पहचान लिया। ईमान की अंगूठी इसने मुंह में छुपा रखी थी। नौकरानी ने एक पंसारी की दुकान से थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची खरीद ली और वो चोर औरत के करीब जाकर खड़ी हो गई। वो चोर औरत एक दुकान पर खड़ी थी और इस ताक में थी कि जो ही दुकानदार की निगाह इधर उधर हो तो वो वहां से मोतियों का हार निकालकर भाग जाए। खादमा ने सामने पहुंचकर मिर्चें इसकी नाक में झोंक दी। औरत ने जोर से छींक मारी तो इसका मुंह खुल गया और सोने की अंगूठी बाहर गिर गई। नौकरानी ने अंगूठी जमीन से उठाकर अपने कब्जे में ले ली और दोबारा से परी बनकर उड़ गई। वो वापस अपनी मालकिन ईमान के पास आई। अंगूठी देखकर ईमान तो सब कुछ भूल गई। उसने अपने खादमा का शुक्रिया अदा किया तो इतना खुश हुई कि इसने उसे अपने सीने से लगा लिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। अब ईमान तन्हाई की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि इसकी भी चंद सहेलियां हों जिनसे वो हंसे, मजाक करे, बातें कर सके। कोई ऐसा काम हो जिसे वो करती रहे और उसे मजा भी आए। कभी कभी ईमान को उस अजनबी मुसाफिर की याद बड़ी सताती थी। न जाने वो कौन था और कहाँ से आया था। ना मालूम वो अपना वादा निभाएगा भी या नहीं। वो किसी किस्म की बातें सोचती रहती थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ईमान ने खिड़की से झांक कर देखा, सामने वही अजनबी मुसाफिर मौजूद था। उसने अपने हाथों में पिंजरा उठाया हुआ था। ईमान का दिल उसे देखकर खुशी से झूमने लगा, मगर फिर उसे अपनी बदसूरत चेहरे का ख्याल आया। उसने सोचा, ये शक्ल लेकर मैं इसके सामने कैसे जाऊंगी। अचानक इसकी निगाह अपनी अंगूठी पर पड़ी। वो कहने लगी, ऐ पाक अंगूठी, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी बदसूरती को खूबसूरती में बदल दे, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दे। ये अल्फाज अदा करने थे, एकदम से बादल गरजे और ईमान के कानों में आवाज आई, ऐ लड़की, बेहतर यही था जो शक्ल सूरत तुझे खुदा ने दी है, तू इस पर कनात कर। लेकिन अगर तुझे ये शक्ल पसंद नहीं है तो हम उसे बदल देते हैं, मगर याद रखना कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी। इसके बाद ये अंगूठी तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएगी। बताओ, तुम्हें शर्त मंजूर है? ईमान बोली, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे बस खूबसूरत चेहरा चाहिए जैसे शहजादियों का होता है। इसके बाद मुझे अंगूठी की भला क्या जरूरत है? बहुत अच्छा, तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी की जाती है। थोड़ी ही देर में वो अंगूठी गर्म होने लगी, यहाँ तक कि ईमान की उंगलियां जलने लगी। इसने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी। एकदम से कमरे में तरह तरह की आवाजें आने लगी।
फिर अंधेरा छा गया। ईमान दौड़कर आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। उसने आईने में देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बदसूरत लड़की की जगह दुनिया की इंतहाई खूबसूरत लड़की इसके सामने खड़ी थी। ये वही थी। वो अपना चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी। उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। इसी लम्हे वो अजनबी मुसाफिर नौकरानी के साथ कमरे में आया। जो ही इसकी नजर ईमान पर पड़ी वो हैरत के साथ उसे तकने लगा। ऐसी खूबसूरत लड़की इसने किसी भी मुल्क में नहीं देखी थी। वो कहने लगा, मैं आपके लिए ये खूबसूरत परिंदा लेकर आया हूँ। ये आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपका साथी बनेगा। रोज आपको नए नए गाने सुनाया करेगा। उसने पिंजरा ईमान के सामने कर दिया। इसमें सुनहरे रंग का एक नन्हा सा परिंदा था। ईमान ने जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब डाला और नौजवान से कहने लगी, मेहरबानी करके कुर्सी पर बैठ जाइए। आपने बड़ा करम किया है। आप दोबारा मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं और इतना खूबसूरत परिंदा मुझे तोहफे में भी दिया है। नौकरानी जल्दी जल्दी खाना तैयार करके ले आई। ईमान मेहमान के सामने बैठकर खाना खाने लगे तो नौजवान उसे कहने लगा, जहाँ जहाँ भी मैं गया मुझे आपकी याद सताती रही। कैसे आपने मेरे जख्मी हाथ की मरहम पट्टी की थी। अगर आप पट्टी ना करती तो शायद मुझे अपने हाथ से महरूम होना पड़ता। तो ईमान कहने लगी, जनाब, अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो। वो तो मेरा फर्ज बनता था। उसे याद दिलाकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, आप किसी बादशाह की बेटी हैं? नौजवान ने पूछा। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां बादशाहों की बेटियां ही हुआ करती हैं। सुनकर ईमान का दिल रंजीदा हो गया। इसने सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी और कहने लगी, जिसे आप बादशाह की बेटी समझ रहे हैं वो एक मामूली सी लड़की है। नौजवान बोला, नहीं नहीं, आप शहजादी हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको शहजादी बना दूंगा। सुनिए, मैं एक बहुत बड़े बादशाह का बेटा हूँ। मैं शहजादा हूँ। मैं अपने लिए एक बीवी की तलाश में निकला था जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुश इखलाक और मिलनसार भी हो। मैंने दुनिया के बड़े मुल्कों की सैर की है, लेकिन मैंने आप जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराहे करम आप मुझसे शादी कर लें। ईमान ने अपने दोनों हाथ शर्म के मारे अपने चेहरे पर रख लिए। इसके बाद शहजादा ईमान को लेकर अपने मुल्क में चला गया और इन दोनों की धूमधाम से शादी करा दी गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। मोहतरम नाजरीन, ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।